Okay, so the topic is Introduction to MATLAB and its application in signal processing. So let me first ask, ये visible हो रहा है सबको? Is it visible properly? Manoj sir? Manoj sir? Just please respond whether this Yes. visible or not. Okay. Okay, तो proceed करें आगे. Introduction to MATLAB and its application in signal processing. So let us Yes, sir. Okay, okay. तो आगे आगे तुम नेक्स्ट करते हैं. Okay. So let me introduce first some facts for a first impression about MATLAB. So MATLAB is high-level language for technical computing. It stands for Matrix Laboratory, and basic data structure is matrix. That is, most of the fundamental object in MATLAB is matrix. MATLAB does not need any variable declaration as we do in C program, Java, C++, whatever. MATLAB doesn't need any variable declaration. We can start directly writing the name of variable. No storage allocation also required. No pointer is required. Just I will take 5 minutes in introducing this MATLAB, then I will directly go to the MATLAB prompt. So when you open MATLAB, there will be so many small windows. So one is command window where you can directly enter small commands or in 2-3 line commands. Another is workspace where all the variables are being stored. Another is history. Whatever command you are entering, all the commands will be being shown at the history prompt. तो history prompt में एक एक कमांड आप जो भी यहाँ पे कमांड विंडो में एक एक करके एंट्री करेंगे सारे यहाँ हिस्ट्री में उसको याद रखेंगे. एक और विंडो होता है जिसको एडिट विंडो कहते हैं हम. सो दे आर ऑल अबाउट द वर्क स्पेस. एडिट विंडो में हम राइट कर सकते हैं कोड को, लॉन्ग कोड को क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं और जब चाहे उसको हम रन भी कर सकते हैं. तो उसको सेव करते हैं .m फाइल में, इसलिए उसको m फाइल कहा जाता है. तो एडिट विंडो होता है. ओके, जनरली हम वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल्स, मैट्रिसेस एंड वेक्टर no need of type like double A, B. So double type variable B, float C. So in MATLAB, we don't need all these type of variable declaration. Variables are case sensitive. That is name and name. These two are different. Okay, these two are different in MATLAB. So it is case sensitive. Variables can contain up to 32 characters, but beyond the 32 are ignored. तो ये लॉन्ग एग्जांपल है. इस तरह का इतना बड़ा वेरिएबल कभी नहीं लिया जाना चाहिए. सो दिस इज रॉन्ग वे. सो 32 कैरेक्टर मैक्सिमम, बट जनरली पीपल यूज 2, 3, 5 कैरेक्टर्स. सो वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर और लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर. अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट, बट स्टार्टिंग में डिजिट आपको नहीं देना है और स्टार्ट में आपको अंडरस्कोर भी नहीं देना है. स्टार्ट लेटर से ही होना चाहिए, ABCD, स्मॉल और कैपिटल लेटर. तो ये वेरिएबल का ये प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, जिस तरह से ऑपरेटर हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, इन द सेम वे दिस MATLAB आल्सो यूजेस ऑल दिस ऑपरेटर्स. So plus, minus, multiplication. There are two types of multiplication. The asterisk shows the scalar matrix multiplication, and dot asterisk shows array multiplication. We will see all this in detailed example, then we will understand the use of all this. So this is power, Mercapta. This dot power, division, back division, okay, dot division, dot back division, colon, parenthesis, brackets, dot, ellipsis, comma, colon, percentage. So all will be used. Within 5 minutes after introducing this MATLAB, I am going to show you the MATLAB prompt. So we can use these commands for managing the session. So suppose we want to clear all the windows, we will write CLC, clear, exit, global, help, look for, quit, who, whose, who lists all the current variables and whose lists current variable in long display. So these are also there.
we will go to the directly to the MATLAB prompt now. Okay, so let me introduce some functions. Built-in MATLAB functions are some like result is equal to function name input. We are giving some input. This is the function name, and here result we show here. And these are the built-in functions. MATLAB में खुद अंदर का अपने आप में जो लिखा गया है फंक्शन, वो फंक्शन को built-in फंक्शन कहते हैं. ये एक तरह से कीवर्ड होता है. So like apps, it gives the absolute value of any number. SIG and sign gives the positive or negative sign of the number. Log 10, log 2. EXP calculates the exponent. SQRT calculates the square root. SIN, sin, cos, tan calculates all the trigonometric values. Okay. So after this, we will give one parenthesis and number. So we will see all this in example. Likewise, maximum, minimum, round, floor, seal, fix, mode, RAM, all this. So how to write expressions? We write first variable name equal to then expression. Like that. For addition, we can write a plus b. Subtraction, a minus b. Multiplication, a into b. And in MATLAB, code will be similar. For a into b, we'll write asterisk. Multiplication should be replaced by asterisk sign. So division is the same, and power a to the power b, we will use this Mercator sign, caret sign. So hierarchy of operation. If there are so many operators at the same time, so what should come first and what should come later? So parenthesis should come first, then exponential, then multiplication and division, and then addition, and at last subtraction. And line continuation operator. If we are writing so many lines in a command, so we can use this three dot line, and then enter next line will be the next remaining command will go to the next line. Okay, now I am sharing the MATLAB prompt directly. Okay, so here I am wait a time. So this is MATLAB. Sanjay sir or Manoj sir, let me ask, it's visible? Yes sir, visible. Visible, okay. This number, shall I increase the font of this? फंट इंक्रीज करना है कि ऐसे विजिबल हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए. थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं. चलिए होम, तो ये भी इसमें सीखना है कि कैसे फंट इंक्रीज किया जाता है. होम में जाते हैं. होम में क्या करते हैं? प्रेफरेंस में जाएंगे. होम, देन प्रेफरेंस, देन you select this font size here. It just takes 4-5 seconds. Okay, so I'm going to increase 12 to say 18. Okay, so all the fonts are now 18. So here in this window you can use, this window is called editor window. Here I have edited something. This window is called command window. See, it is written command window. Here we can write any command. Next, this below window is called the workspace, and there is command history just next to this. This is command history. So whatever command we will give, it will come into this command history. Workspace, all the variable size and variable data will be stored in this workspace. वर्कस्पेस में जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन होगा, वो सारे वेरिएबल का साइज प्लस उसमें क्या डाटा स्टोर है, सारे यहाँ पे स्टोर होंगे किसमें? वर्कस्पेस में. कमांड हिस्ट्री में सारे कमांड यहाँ पे दिखाएंगे, जो कमांड को हम यहाँ कमांड विंडो में एक एक करके लिखेंगे. और ये विंडो कौन सा हो गया? ये विंडो हो गया मेरा एडिटर विंडो. और एक नेक्स्ट इधर राइट साइड में विंडो है जिसमें कि हम सारे फाइल एम फाइल का नाम यहाँ पे स्टोर करते हैं. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. सबसे पहले मैं कमांड विंडो में दिखाता हूँ कि कमांड विंडो में अगर मैं लिखता हूं कुछ, जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3, okay, then we write enter sign, so it gives the value of 1 2 3. okay, if I'll give clc, it cleans the command window. command window clean करने के लिए क्या लिखते हैं हम?
CLC, देखिए ये एरो, राइट एरो, अप एरो अगर कीबोर्ड में दबाते हैं तो पिछला कमांड यहाँ पे आता है CLC। ओके, और अगर मैं देखना चाहूँ एक अरे, अरे डिफाइन करता हूँ जिसमें कि एक रो एलिमेंट है और उसका एलिमेंट क्या क्या है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। इंटर करने से बता रहा है कि वेरिएबल ए में 3 डाटा है, 1 2 3, और ये एक तरह से रो है। इस तरह से हम कॉलम डिफाइन करते हैं। ओके, बी इज इक्वल टू 1 कोलोन 2 कोलोन 3। अगर ये लिखें कोलोन से अगर सेपरेट हो तो ये मेरा कॉलम वेक्टर बन जाता है। सो इंटर जैसे ही करेंगे तो ये बताएगा b इज इक्वल टू 1 2 3। सो b इज अ कॉलम वेक्टर। सो इस तरह से रो और कॉलम को सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो हम जो अभी बताने जा रहे हैं ये फर्स्ट अरे ऑपरेशन। ओके, सो अरे ऑपरेशन के लिए ये हम अभी फर्स्ट में हम क्या इंट्रोड्यूस किया कि कमांड विंडो का यूज कैसे करते हैं। कमांड विंडो जहां fx लिखा हुआ है और 2 ग्रेटर देन साइन लिखा हुआ है, इसके आगे जो भी कमांड यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, है ना, वो कमांड डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट करेगा जब मैं इंटर को प्रेस करूंगा। ओके, लाइक अगर मैं लिखता हूं सिंपली 5 + 6, so it will show the answer is equal to 11. Okay, so whatever expression you will write here after fxs, it executes and gives the answer in the command window. And in command history you can see all this, whatever I have executed in command window, those are being shown in command history. Say a is equal to 1 2 3 CLC, then a is equal to 1 2 3, b is equal to this, all these commands I have used. Suppose you want to use some previous command, command history में जो है इसको फिर से करना है तो यहाँ जस्ट डबल क्लिक कीजिए, b को डबल क्लिक कीजिए तो b का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। ओके, सो ये फायदा है कमांड विंडो का और कमांड हिस्ट्री का। तो मैं कमांड विंडो और कमांड हिस्ट्री के बारे में यहीं तक बता रहा हूँ। अब इसमें वर्क स्पेस में जाइए तो ये ए का डाटा को यहाँ स्टोर किया हुआ है। ए क्या है 1 2 3, बी में क्या है 1 कोलन 2 कोलन 3। ओके, now I am going to the editor window. This is my editor window. Let me clean first CLC. So what I will do, I will open one by one. Okay, I'm just Control T removes all this percentage sign. If I am giving this percent sign, so line is commented, वो line comment हो जाता है, उसको MATLAB execute नहीं करता है। तो सबसे पहला मैं बताने जा रहा हूं कि रे ऑपरेटर अरे ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो सपोज a is equal to 1 2 3, what does this give? If I'll run this, so what is the rule? First you are writing CLC which closes all the variables in the workspace, cleans all the previous variables and their data also storage. So I am writing this such that I am going to explain so many variables and each variable should not match with overlap with other variables. So in first we are writing CLC and clear all. Okay, अगर आप एक ही प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ढेर सारा प्रोग्राम को एक साथ शो कर रहे हैं तो उसमें ये हम लिख दे रहे हैं CLC clear all, ताकि एक वेरिएबल का डाटा दूसरे वेरिएबल से ओवरलैप नहीं हो। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस। नाउ अरे ऑपरेशन को यहाँ पे एक परसेंटेज साइन है, ये बता रहा है कि ये लाइन मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जस्ट हम अपना सुविधा के लिए लिखते हैं कि क्या करने जा रहे हैं उसको यहाँ पे हम दिखाते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ओके, how to execute? First write something. Suppose I have written only these 2 lines, these lines are not there. Okay, suppose these lines are not there and I have written only this, so we will save this. Control S, Control S will suppose, or you can go to editor window, save window, you can save this. So this is already saved as test2.m. so here at right side you can see test2.m में ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराऊंगा तो हम एडिटर में क्या करते हैं, यहाँ पे रन करने के बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ सेमीकोलन है, बट इसका वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुका है और ए का वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे वर्क कमांड हिस्ट्री में दिखा रहा है। ओके, वर्क स्पेस में दिखा रहा है। ए में क्या है 1 2 3 आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ पे देखना है कमांड विंडो में, यहाँ पे तो क्या करेंगे, इस कॉलम को हटा दीजिए और इसको इंटर कीजिए, इंटर नहीं, इसको रन कीजिए। तो रन करने का 2 तरीका है। एडिटर में जाके हम रन करेंगे तो यहाँ दिखाएगा, अदरवाइज F5 प्रेस करेंगे, F5 करेंगे तो भी वही आएगा। ओके, सो दिस इज डन। नाउ सपोज b is equal to 4 5 6,
Okay, so what it will show when I will run कैसे करेंगे इसको, हम F5 प्रेस करते हैं. ओके, F5 प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू दे रहा है यहाँ कमांड विंडो में. यहाँ ये 2 लाइन रन हुआ है. ए का वैल्यू, ए एक रो मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं. बी एक रो मैट्रिक्स है जिसका कि 3 एलिमेंट्स है 4 5 6. अगर मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ए और बी के एलिमेंट को जोड़ना है ना, तो हम क्या लिखते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी. और इसको जैसे ही हम रन करते हैं F5 से तो ये सी का वैल्यू दे रहा है. तो आप देखिए यहाँ एलिमेंट बाय एलिमेंट सम हो रहा है. 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9. तो C1 ए और बी के एलिमेंट को सम करके स्टोर कर लेता है आपस में. ओके, नो सपोज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. एक वेबिनार था मैं मैटलैब पे. क्लास नहीं है मैम. यस सर, कंटिन्यू करिए. कंटिन्यू. ओके सर. Okay, so similarly, if you want to do subtraction, just run this command. So yes, C2 is subtracting a minus b element by element. So 1 - 4 is -3, like that. If I want, just remove the colon. Element by element multiplication. So you have to put this dot sign, dot asterisk. Then it will do element by. I am running by pressing F5. F5 press किए तो ये multiply कर रहा है. 1 × 4 4, 2 × 5 10. You can see the result in command window. Okay, 2 × 5 10, 3 × 6 18. So C3 stores all this multiplication. If I'll remove dot, then what happens? Then it is matrix multiplication. What is the order of matrix A? It is 1/3. What is B? This is also 1/3. So 1/3 और 1/3 दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. उसका फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो मैच करना चाहिए, है ना. ये 1/3 है तो ये 3/1 हो तभी मैच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो अगर मैं यहाँ डॉट हटा दूं तो ये एरर दे देगा. डॉट हटा के अगर मैं रन करता हूं तो ये एरर दे रहा है ना. डायमेंशन आर मस्ट एग्री, तो डायमेंशन एग्री नहीं हो रहा है. ओके, तो यहाँ डॉट रहना चाहिए. अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है तो डॉट एस्ट्रिक हम यूज करेंगे. ओके, और डिवीजन, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन करना है तो फिर डॉट डिवीजन. ओके, इसको रन करता हूं मैं. इस लाइन को रन किया हूं, डॉट डिवीजन. तो ये डिवाइड कर रहा है. 1/4, 2/5, 3/6 इक्वल टू दिस वैल्यूज. ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है ना. ए में क्या स्टोर है 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश C5 इक्वल टू ए डैश हम यूज किए हुए हैं. इसको कॉलम को हटा दिया, रन कर रहे हैं तो ये C5 का वैल्यू दे दिया. 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स बन गया. ओके, नेक्स्ट इज, अगर मैं मल्टीप्लाई ही करना चाहता हूं तो ए का ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी से, है ना. क्योंकि ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 3, इसका साइज क्या हो गया 3/1 और बी का साइज है 1/3. सो आंसर विल बी 3/3. ओके, so C6 इक्वल टू A transpose multiplied by B will give 3/3 matrix. Okay, so let me run after pressing F5. So it is giving me 3/3 matrix. Okay, so we are not going to declare the variables. It may be integer, it may be float, it may be double size. Okay, it may be string, whatever. So no need to declare the variable type. Okay, and size also. Directly write variable name and the expression. Okay, so these are the expression and this side is the variable name. Okay, now what if we will do C7 is equal to A multiplied by B dash. So this is matrix multiplication again. B dash, what will be B dash? B is 1/3, B dash will be 3/1 and A is 1/3. So A multiplied by B transpose will be 1/3 multiplied by 3/1. So answer will be 1/1. Okay, so answer will be 1/1. Let me execute this. So answer is C7 is equal to 32. Okay, so we are completed.
You may use this all the expression in your mobile also. Mobile also some MATLAB app is there. There you can directly enter all these commands one by one, plus, minus, okay, element multiplication, element division, and matrix multiplication, matrix multiplication, all. Okay. Now next. Next, I am going to show you some other things. Yeah, these three things. So here also I have written long code. Okay, long code is there. I will explain one by one everything. Okay, so many things you will learn. So only thing I have to remove this command. Okay, if I'll execute this, nothing will come. See, if I'm executing this, nothing is coming. Okay, so we need to uncomment. So this percentage sign is showing commented expression. Okay, so for removing the comment, what shall I do? I will remove, select all this, and then right click, uncomment. Okay, this is uncomment, control plus T. So you have to use this also always. So now these expressions are uncommented. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so if I'll remove this colon, then only it will show result here. If I'll run F5, I have run the command. So A1, A, B1, B2, whatever value it stores, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे वर्क स्पेस में शो कर रहा है. देखिए A, B1, B2, बट यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा है. हमको कमांड में देखना है A का वैल्यू क्या है. तो जस्ट इसको हटाएं और मैं इसको रन कर रहा हूँ. तो A का वैल्यू आ गया. ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें 7 एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ये 7 वैल्यूज. नाउ B1, अब हम बता रहे हैं एक टेक्निक यहाँ पे कि देखिए ये कितना इजी होता है इसमें कि एक कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को उठा कर किसी दूसरे मैट्रिक्स या कॉलम में रखना है. तो B1 को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि B1 में A का 2 से 4 एलिमेंट आए, मीन्स दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद B1 में नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो, नेक्स्ट एलिमेंट 1 हो. तो इसको रन करते हैं. तो ये देखिए A को भी मैं क्या है, B में क्या क्या आ रहा है, A का दूसरा से चौथा. तो दूसरा से चौथा क्या है 2 3 4, दिस 3 एलिमेंट. ओके, 2 3 4 is coming here. Then next element is 0, next element is 1. So 0 1. In this way you can copy any number of variables, okay, into any other array. तो हम array A जो था उसका सिर्फ दूसरा से चौथा एलिमेंट को हम यहाँ पे रखे हैं. इस तरह से अगर मैं लिख दूं ये वाला B2 में A का दूसरा एलिमेंट, देन A का 5th से 7th एलिमेंट, देन नेक्स्ट 2 एलिमेंट इज 0 0. दिस विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड. A का सेकंड एलिमेंट क्या था, A का सेकंड एलिमेंट 2 था, देन 5 to 7, 5 6 7, then 0 0. So this way we can execute different. Well, now I'm just commenting this, control R, and mod. Let me understand mod and RAM. What is application of mod and RAM? If I'll give, let me uncomment. So what is the application of mod? So mod 17/5 means 17 is being divided by 5, and whatever remainder is the answer. Answer is 2. Okay, so if I'll do mod minus 17/5, what will be answer? So answer is 3. What it does, it calculates the minimum value. So minimum value is next to the minus 17 is minus 20. Okay, then it plus adds 3. Okay, so 3 means 5 into minus 4 plus 3 is equal to minus 17. Okay, so this is called the modular division. Next, remainder, REM. So REM is the same as mod 17/5. Okay, RAM and mod is same for positive numbers. You can see this. Answer is 2, and here also answer 2. Okay, so when we calculate mod 17/5, it gives 2. When we calculate RAM 17/5, it also gives 2. But when we take negative remainder minus 17/5, this will give different things. Okay, so let me remove this, and only we will compare mod minus 17/5 and RAM minus 17/5. These two are different. Okay, let me execute this. So it is giving 3, this is giving minus 2. Means 5 को 3 से
multiply करें, 5 3 जा minus 3 जा minus 15, and then how much extra we need? minus 2. So that is the remainder. But modular division, it calculates the multiple of 5 near to minus 17, but it must be less than minus 17. So what is that? That is minus 20. Okay, should be less than minus 17, and multiple of 5, that is minus 20. Then how much number must be added to that or subtracted to that to get this number? So we need 3, minus 20 plus 3. So modular division, it is 3. Okay, so you can note down all this value. You can note down. There will be one simple test also after that. Okay, when this program will be finished, there will be simple test also. So this is done, application of mod and RAM. Control R. So matrix operations. Okay, now I am going to explain how matrix operations are done. So let me remove all this. Okay, so first, if I want to write a matrix, so this 1 2 3 is the first row, 4 5 6 is the second row. Okay, let me press F5 to run this. So it is running. It is giving me a matrix whose name is A. matrix का नाम क्या है? A, और उसमें क्या है? फर्स्ट रो में 1 2 3 और सेकंड रो में 4 5 6. So this is a 2 by 3 matrix. Okay, so क्या करते हैं, यहाँ हम जस्ट स्पेस देते हैं, स्पेस से रो जाता है, और जब मैं सेमी कोलन देता हूं तो ये नेक्स्ट रो में चला जाता है. ओके, लाइक दिस A1 is equal to 2 4 5 2 1 3. What will be this order? 3 rows and 2 columns. Okay, let me execute this. So it is 3 rows and 2 columns. Next, so this type, any row, any number of row, any number of column matrix can be written very easily. Okay, now magic. What is magic? It gives me, see, when you execute magic 3, okay, A2 is equal to magic 3. Just see the magic. Execute this. It gives me A2 is equal to this value. What is the specialty of this? Any row or any column or any diagonal elements, when you add, it gives the constant value. Like first row it gives how much? 8 plus 9 plus 6, 15. This also 15. This row also 15. If you add column wise, 8 plus 3 plus 15, this 15, and diagonal wise also 15. So each diagonal, each row and each column elements sums to the constant value. If I'll give magic 5, run this command. So it gives 5 by 5 magic matrix. Okay, इसके सारे रो को ऐड किया जाए तो 65 आएगा. Okay, so this is the beauty. You can write 3 and run again. It gives this. Now I am explaining another मैट्रिक्स को. ये मैजिक क्यों यूज करते हैं कि कभी कभी हमको मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना है जिसमें कि सारे एलिमेंट हमको एंट्री नहीं करना पड़े, है ना, तो मैजिक 3 लिख दीजिए, वो आपको एग्जांपल में आ जाएगा. ओके, अदरवाइज सपोज आई नीड अ 5 by 5 मैट्रिक्स, सो ईच 25 एलिमेंट्स आई मस्ट इंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. ओके, तो हमको कीबोर्ड से इंटर नहीं करना पड़े, हमको जस्ट एग्जांपल में किसी को एग्जांपल देना है मैट्रिक्स का, तो जस्ट मैजिक 3 हम यूज करेंगे, मैजिक 4, मैजिक 5, और वो मैट्रिक्स मेरा जनरेट हो जाएगा. दूसरा एक और मेथड है rand 3. इट जनरेट्स रैंडम नंबर. ओके, rand generates random number like 3 by 3. 3 means it will generate 3 by 3 random number between 0 and 1. So let me execute this. So A3 contains all these numbers. All numbers are between 0 and 1, and those are randomly generated. Means their magnitude are not known. जैसे हम पासा फेंकते हैं तो क्या आएगा, उस तरह से ये है ना. कंप्यूटर में इसके लिए कुछ कोड होता है जो कि वो, अब जो हम ये यूज कर रहे हैं मैजिक, रैंड, ये सब क्या है, इसका इंटरनल फंक्शन है. मैटलैब का इंटरनल फंक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब हम लंबे कोड को, प्रोग्राम को लिखते हैं, है ना. एग्जैक्टली मैटलैब का एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसमें हम बड़े बड़े प्रोग्राम को लिख सकते हैं. जैसे हम इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं. आप जब बायोमेट्रिक साइन लगाते हैं तो आप एक कैमरे के सामने खड़े होते हैं, आपके चेहरे को वो रीड करता है और अंदर में वो सिग्नल प्रोसेसिंग करके ही बताता है कि हाँ यू आर ऑथेंटिक पर्सन. ओके, सिग्नल प्रोसेसिंग, सो मेनी मेडिकल एप्लीकेशंस, अब एस्ट्रोनॉमी जो यूज करते हैं, या हम जो स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं वहां भी यूज होता है. साइंस, टेक्नोलॉजी,
all the departments of science and technology, people are using matrix for their vast calculations. Okay, so जहां की हमको तब ये छोटे छोटे जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना. नेक्स्ट, ट्रांसपोज. अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है A2 का, A2 क्या चीज है मेरा, ये एक मैजिक 3 मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है. चलिए हम देखते हैं क्या है मेरा मैजिक 3. comment this, I want to see only this, so this is uncommented, so this is A2. और इसका ट्रांसपोज अगर लें तो क्या होगा तब, A2 dash gives the transpose and stores in the B1. Okay, so A2 is this and its transpose is stored in B1. So 816 row becomes here 816 column. Similarly 356 second row becomes second column. Okay, like that. So only dash A2 dash is transpose of A2. Okay, now inverse, calculate the inverse matrix. What will do, just inv A2, inv inv is the inverse function. Okay, so just run this, it gives me inverse matrix. So this is a matrix we know. इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, ये इनवर्स मैट्रिक्स का कहाँ जरूरत होता है, जहां हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को. तो वो एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे. तो यहाँ हम यूज करना सीख रहे हैं एक एक करके, है ना. क्या क्या यूज करना सीखे, अरे में प्लस माइनस, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन. ओके, देन किसी कॉलम के किसी भी एलिमेंट को कैसे कहाँ भी दूसरी जगह लाके लेके जाना है. जैसे मॉड और रैम में क्या डिफरेंस है, मैट्रिक्स, मैजिक मैट्रिक्स क्या है, रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है. ओके, देन इनवर्स और ट्रांसपोज कैसे होता है ये भी देख लिए. और एक यहाँ एग्जांपल है, फिर आप इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स हम 2x2 डिफाइन किए हुए हैं, ट्रांसपोज निकालना है तो इस तरह से निकलेगा. तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ. अब नेक्स्ट इज कंट्रोल T. So A is a 2x2 मैट्रिक्स, है ना. तो यहाँ सारी चीज कैलकुलेट हो गए हैं एक एक करके. ओके, क्या चीज कैलकुलेट हुआ है, तो इसको हम ऊपर जाएंगे. देखिए A2 को हटा दिया जाए, A2 मैजिक को हम जस्ट अभी नहीं प्रिंट करना चाह रहे हैं और इसको हम रन कर रहे हैं. तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से, है ना. यहाँ से A1 इक्वल टू 4 10 6 8. तो 4 10 6 8 दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 size. B is also 2 4 is the first row, 2 5 is the second row here. Okay, A and B, suppose I want to see the B also, B matrix. So sir, is any magic matrix? So student asking to repeat the magic matrix. Magic, okay. So मैजिक क्या करता है कि हमको कोई एक मैट्रिक्स चाहिए 3x3 का, तो उसके हर एक रो और हर एक कॉलम का सम इक्वल हो जाए. जो हम 7th क्लास में पढ़े थे मैथमेटिक्स में कि 3x3 एक स्क्वायर दिया जाए, उसमें 9 एलिमेंट को इंटर करना है और सच दैट ईच रो और ईच कॉलम का सम सेम आ जाए. तो जैसे मैजिक 3 को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैजिक 3 है ना, A2 इक्वल टू मैजिक 3, तो देखिए क्या होता है. तो यहाँ से ऊपर चल गया वैल्यू यहाँ पे. ओके, A2 में क्या है, ये सब डाटा देखिए, है ना. तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ है. तो इसको इस तरह से 1 से लेकर 9 तक को अरेंज किया गया है, 9 वैल्यू को, सच दैट ईच रो और ईच कॉलम का वैल्यू सेम आएगा और डायगोनल का भी, है ना. तो मैजिक 3 मींस 3x3 कितना हो गया, 9. सो 1 से लेकर 9 तक को 9 स्क्वायर में ये रखेगा, इस तरह से रखेगा ताकि ईच रो और ईच कॉलम का सम इक्वल आ जाए और ईच डायगोनल का भी. तो अब सम कीजिए, 8 + 1 + 6 कितना आ गया, ये 15. अब दूसरा रो को कीजिए, 3 + 5 + 7 15, 4 + 9 + 2 15. अब कॉलम वाइज ऐड कीजिए, 8 + 3 + 4 15, 1 + 5 6 + 9 15. so this 15. डायगोनल देखिए, 8 + 5 + 2 15, 6 + 5 + 4 15. okay, so this is the magic. Now if I write magic 4, that will also be okay. Magic 4, it is going here. Warning, matrix is closed similar.
है ना। इसमें एग्जैक्टली में ये जब ऑड रहता है तो ज्यादा अच्छा होता है मैजिक। ओके, तो ऑड नंबर में मैजिक सही काम करता है। 5 अगर हम दें, ओके, तो ये देखिए ऑड में सही से दिया, ये 5 बाय 5 मतलब 1 से लेकर 25 तक यूज किया है ना। और ईच रो और ईच कॉलम को, अब ये 7 क्लास के मैथमेटिक्स में है कि आप एक मैजिक 5 बाय 5 स्क्वायर लिखिए और इसमें 1 to 25 को एंटर कीजिए सच दैट सम ऑफ द ईच रो एलिमेंट और सम ऑफ ईच कॉलम एलिमेंट एंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आल्सो आर कांस्टेंट। तो यहाँ आप जोड़िएगा तो 65 होगा। इसको आप जोड़िए, किसी को एक रो को, दूसरा रो को भी, सब 65 होगा। ओके, कॉलम को और रो वाइज और डायगोनल को भी। सो यही मैजिक है। ओके, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि कभी कभी हमें एग्जांपल में शो करना पड़ता है कि ये देखो एक मैट्रिक्स 5 और दूसरा उसका ट्रांसपोज लेना है या उसका इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो 5 बाय 5 मैट्रिक्स हम एक एक करके एंट्री तो करने नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। तो वहां पे हम डायरेक्टली मैजिक 5 लिख के कोई भी मैट्रिक्स आ गया एज फॉर एग्जांपल, फिर उसका हम ट्रांसपोज लेके यहाँ पे दिखाए, है ना। B1 इक्वल टू A2 डैश, B2 इक्वल टू इनवर्स ऑफ A2 डैश। ओके, तो मैजिक जो भी मैट्रिक्स जनरेट हुआ उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका इनवर्स क्या होगा, जस्ट हम एग्जांपल शो करने के लिए ये मैजिक कोई भी यूज कर लेते हैं। डॉट क्लियर हो गया? तो मैं आगे जा रहा हूं। ट्रांसपोज यहाँ पे हम इसको रन किए हुए थे, इसको फिर से मैं रन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे डाटा यहाँ पे स्टोर हो गए हैं कमांड विंडो में। देखिए, क्योंकि सबका देखिए कोलोन हम किसी में नहीं लगाए हैं, किसी में कोलोन नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ये सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो गए हैं। ठीक है, आप बगल में ये लिख कमेंटेड लाइन भी लिख सकते हैं। ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोज ऑपरेशन कर रहा है ना। और इसको किसमें स्टोर कर रहा है? मैट ट्रांस। तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। ये यूजर डिफाइंड नेम है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम। आप कुछ भी नाम एक्स ABCD यहाँ दे दीजिए। हम क्या दे रहे हैं? मैट ट्रांस, क्योंकि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को निकालता है, तो इसको स्टोर किसमें कर रहा है? मैट ट्रांस में, है ना। ए का, तो ए का वैल्यू कितना था? 4 10 6 8, तो इसका ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे निकल गया, 4 10 6 8 ट्रांसपोज हो गया। दूसरा सेट क्या है? B इंटू ए, तो B और A को मल्टीप्लाई किया है ना। B का वैल्यू ये है, A आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं दोनों का, जो रिजल्ट होगा वो मैट मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, है ना। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन मैट मल्टीप्लीकेशन, लाइक मैट एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन, है ना। इसको हम नाम क्या दे दिए? मैट इल मल, मीन्स मैट्रिक्स एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा रखा जाए ताकि हमको पता चल जाए वेरिएबल के नाम से ही कि क्या ऑपरेशन होने जा रहा है। ओके, अदरवाइज इट इज यूजर डिफाइंड वेरिएबल, व्हाट एवर वेरिएबल नेम यूजर कैन डिफाइन एज देयर विश। तो यहाँ पे B डॉट मल्टीप्लीकेशन जब देते हैं, है ना, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई करेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, उसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। जैसे एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखिए क्या आएगा। देखिए 4 by 2 will be 8, so first element will be 8. So let me remove this also, colon. So whatever I want to see, let me see that one only. Okay, uncomment all others, कोलोन। यहाँ पे हम कोलोन दे रहे हैं, यहाँ पे कोलोन दे रहे हैं, ताकि ये डाटा हमको वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम कोलोन दे दिए। ओके, तो खाली सिर्फ हमको क्या क्या दिखेगा? ये वाला A का वैल्यू, B का वैल्यू और ये मल्टीप्लाइड वैल्यू, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये 3 डाटा को ही दिखाएगा। एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 3 वैल्यू को दिखा रहा है। अब देखिए ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो 4 by 2 8, 10 by 4 40। ओके, सो लाइक दैट एलिमेंट बाय एलिमेंट। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 जो आया उसको हम फर्स्ट में रखते हैं। ओके, तो क्या होगा? 4 इंटू, वो आप जानते हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। तो सिर्फ अगर एस्टिक यूज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और डॉट एस्टिक यूज कर रहे हैं तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, इस तरह से सिर्फ डिवीजन तो मैट्रिक्स डिवीजन, डॉट डिवीजन तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवाइड करेगा। ओके, इसको भी चेक कर सकते हैं। ये अगर मैं कर दूं रन, तो ये मैट्रिक्स डिवीजन का ये 4 वैल्यू दे दिया। ओके, नो कोलोन यहाँ दिया, इसके कोलोन को हटाते हैं हम। ज्वाइन, हम 2 मैट्रिक्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना है तो B और A हम डाल रहे हैं, है ना। 2 मैट्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, पहला मैट्रिक्स B आना चाहिए और उसके जस्ट नेक्स्ट में
ए आना चाहिए, तो इसका नाम हम क्या दे दिए, मेट ज्वाइन हॉरिजॉन्टल, है ना, मेट ज्वाइन एच, ये जस्ट हम नाम रखे हैं, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और क्या किए हैं, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यही रहना चाहिए मैट्रिक्स में हमेशा, है ना। यहाँ भी देखिए ये दूसरा ब्रैकेट दीजिए गलत हो जाएगा, यही ब्रैकेट रखना है, बी और ए को रखना है। तो क्या करेंगे, इसको हम रन करते हैं, तो देखिए बी और ए एक साथ जुड़ गया, पहले बी आया 2425 2425, है ना, नेक्स्ट में ए का वैल्यू जो था वो इसके जस्ट बगल में हॉरिजॉन्टली ऐड हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्टिकली ऐड करना है तो क्या करेंगे, ज्वाइन मेट ज्वाइन भी, है ना, बी या कोलोन, कोलोन दे देने से क्या होता है, वो नेक्स्ट रो में चल जाता है। तो ये बी आया फर्स्ट रो में, सेकंड रो में ए आ जाएगा, इसको रन कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में मेरा ये चारों है और सेकंड रो में ये बी का वैल्यू आ गया है, ए का वैल्यू आ गया, तो फर्स्ट बी देन ए। अगर आप इंटरचेंज यहाँ ए और बी रखिए तो फिर वो भी काम करेगा। ओके, नाउ इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। कोई डाउट हो इसमें से तो आप पूछ सकते हैं अब तक, एनी डाउट? नाउ सिमुलेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी, इस तरह का एक्सप्रेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, जहाँ की ए क्या है, एक मैट्रिक्स है मेरा 3x3 का, बी भी 1/3 कॉलम मैट्रिक्स है ना। तो मेरा इक्वेशन होता है क्या, a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू b1, या a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इज इक्वल टू b1। दूसरा होता है, दूसरा लाइन b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3 इज इक्वल टू b2, इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो तीन इक्वेशन है मेरा, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस, जिसमें कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है और बी क्या है, इधर राइट साइड का मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, है ना। तो बी मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स कर देना है, ए को हम डिफाइन करते हैं पहले, ए इक्वल टू ए2। ओके, ए2 क्या था, हम यहाँ ए2 डिफाइन किए हुए थे पहले कहीं, ए2, चलिए ए2 इक्वल टू मैजिक 3 था, ए2 इक्वल टू मैजिक 3 व्हाटएवर, तो हम फिर यहाँ पे कर लेते हैं, where is this, yes here, so let me remove this commented line first। तो a2 एक हम मैजिक 3 डिफाइन कर दिए, अब क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू ये आ रहा है a2, जो भी मैजिक 3 बना वो a में रख दिए। ओके, b इक्वल टू ये क्या है मेरा 1 2 3 वैल्यू है कॉलम डाटा, तो x जो सॉल्यूशन होगा मेरा, इनवर्स ऑफ a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, है ना। ये तो होता है a को उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स ऑफ a हो जाएगा मैट्रिक्स, और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा सॉल्यूशन दे देगा। ओके, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखिए ए को भी यहाँ रख दे रहे हैं, रन, तो ये ए मैट्रिक्स है और ये क्या है मेरा एक्स का वैल्यू है ना। तो बी क्या चीज है, कॉलम मैट्रिक्स, आप इस तरह से देखिए, रन कर दे रहा हूं, तो ये मेरा क्या था, ए मैट्रिक्स मीन्स 8x1 प्लस 1x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 1। इस तरह से दूसरा इक्वेशन क्या था, लीनियर इक्वेशन 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 2। तो तीसरा इक्वेशन मेरा 4x1 प्लस 9x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 3, और इसको सॉल्व करना है, x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकल गया, x1 का ये वैल्यू, x2 का वैल्यू ये, x3 का वैल्यू ये। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम पहले इस मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं, ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर बी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, x इज इक्वल टू इन्व ए, जो कि इनवर्स ए निकालता है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय बी। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, कंट्रोल आर। नो, नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं ये कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलिए इसको पहले अनकमेंट कर देता हूं, कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी कंट्रोल आर से आप लंबे प्रोग्राम को लिख के अब दूसरे ये इजी होता है बताना, अभी इसको यूज कर सकते हैं। ए में देखिए क्या है, ये वन फर्स्ट रो में जाएगा, और जो सेमी कोलोन है तो ये सेकंड रो में चल जाएगा, है ना। तो ये 2/3 है, देखिए इसको रन कर रहा हूं, तो ए इज 2/3 मैट्रिक्स, बी क्या है 3/2, देखिए बी फर्स्ट रो सेकंड रो और ये जाएगा थर्ड रो, क्योंकि इसको कोलोन कोलोन से हम
हटा सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको भी अगर मैं रन करूं तो A is 3/2, B is A is 2/3 and B is 3/2 मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे रिजल्ट में दिखा रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब C को हम लिख रहे हैं B डैश, तो ये ट्रांसपोज निकाल देगा। ओके, B का ट्रांसपोज, अगर इसको हम देखना चाहें तो ये B का ट्रांसपोज कर रहा है। देखिए ऐसे B था तो यहाँ ट्रांसपोज हो चुका है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। D इजकल टू A प्लस सी, A और C को अगर हम जोड़ेंगे, ओके, तो क्योंकि दोनों को एक साथ यहाँ हम जोड़ सकते थे, A प्लस B को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का A और B दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। एडिशन सेम डायमेंशन में होना चाहिए। तो हम क्या किए, B का अगर ट्रांसपोज ले लें और उसको हम किस में रख दें, C में, तब हम ऐड कर सकते हैं। तो B के ट्रांसपोज को C में रखें और D इजकल टू A प्लस सी, तब ये रन होगा। ओके, रन दिस, तो D इजकल टू दिस। ओके, ट्रांसपोज किए B को और A में ऐड किए। ओके, तो सिमिलरली व्हाट इज दिस, B इंटू A आप कर सकते हैं। E इजकल टू A, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है ना, बी ए, यहाँ पे क्या हो रहा है, A डॉट C मीन्स एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन। सो सेम थिंग इज कमिंग अगेन, जस्ट कमेंट दिस, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट लाइन। ओके, सो next line is determinant and inverse. Okay, inverse I have known, we will see the determinant. Okay, एक मैट्रिक्स है, क्या चीज, 1 2 3/3 है ना। ए क्या चीज है मेरा, यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स रन कर रहा हूँ, तो ए इज 3/3 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम, गेट ए, ओके, DET ब्रैकेट में ए रहेगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा। चलो इसको रन करता हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट इसका कितना वैल्यू दे रहा है, 20। ओके, नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, तो वो तो हम देख ही चुके थे, फिर से देखिए, ए इनवर्स, तो इसका इनवर्स निकाल के दे रहा है। तो वेरी इजी, ऑन वन क्लिक यू आर गेटिंग इनवर्स, डिटर्मिनेंट, वॉट एवर। नो, let me comment this, or so I am taking just 2-minute break, I'll be back within 2 minutes. Okay, okay sir, I'll be back in 2 minutes sir. Okay, so dear student, what you do, you just type your name in the chat box, that will be your attendance. So 180 लोग हैं यहाँ, ठीक है। आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करिए, केवल नाम टाइप करिए जो आप सर्टिफिकेट में देना चाहते हैं या दिए हैं। ओके, सो हम उस नाम को यहाँ रिकॉर्डिंग में लगाए हैं और हम मैच करेंगे और उतने को हम सर्टिफिकेट यहाँ से अलाउ करेंगे। सो नाउ योर टाइम स्टार्ट, I will give you 5 minutes. You type your name in the chat box. That will be your attendance. आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करिए, वही आपका अटेंडेंस होगा। आप अपना नाम आराम से टाइप करिए, धीरे धीरे टाइप करिए, एक बार टाइप करिए और वही आपका अटेंडेंस होगा। आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, केवल नाम टाइप करिए, ठीक है, केवल नाम, अपना नाम, हाय हेलो टाइप नहीं करिए और एक ही बार टाइप करिए। और एक आदमी एक ही नाम टाइप करिए, आपका जो चैनल का नाम है वहाँ से हम आपका एक चैनल के नेम से एक नाम ले रहे हैं। सो आप 2 टाइप करिएगा तो आपका भी हट जाएगा, उनका भी हट जाएगा। सो आप एक ही बार नाम टाइप करिए एंड दैट विल बी योर अटेंडेंस। और अटेंडेंस के जस्ट बाद हम आपको क्विज देंगे, ठीक है। अटेंडेंस के जस्ट बाद हम आपको क्विज देंगे, सो यू ऑल्सो टेक केयर टू प्रेजेंट इन दैट क्विज। ओके, सो आई एम बैक। और अटेंडेंस के जस्ट बाद हम क्विज दे रहे हैं,
सो हाँ क्विज में अटेम्प्ट करिए आप, और तब तक सर हमारे आ ही रहे हैं। आ गए हैं सर। हेलो हेलो। ओके, सो टाइप करिए वन टाइम नेम। सर वी आर जस्ट टेकिंग अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, ओके सो ओके सर। टेक वन मोर मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आवाज़ आ रही? हाँ आवाज आ रही है सर। नाम टाइप करिए चैट बॉक्स में, सब लोग नाम टाइप करिए, वी आर टेकिंग अटेंडेंस। नाम टाइप करिए अपना चैट बॉक्स में, नाम टाइप करिए सब लोग चैट बॉक्स में। वी विल टेक अटेंडेंस, इट विल टेक वन मोर मिनट। एक बार में एक ही आदमी नाम टाइप करिए। हाँ सर, स्टार्ट करिए आप। स्टार्ट करें? ठीक है सर। हेलो सर, हाँ परिमल सर सर। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं सर। ठीक है सर। हाँ स्टार्ट करिए, आप शेयर करिए। हाँ शेयर कर दे रहे हैं। ओके सो कहाँ पे थे? रिसेप। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे रिसेप करते हैं। इसको अनकमेंट कर रहा हूं मैं पहले। सो टी कंट्रोल टी सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से अनकमेंट हो जाता है। सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल आर दें तो ये कमेंटेड हो जाता है। ओके, so this is very easy way for presentation purpose also. Control T, so removed. Now reshape. A is equal to 1 colon 2 comma 12. इसका मीनिंग पहले समझते हैं ये क्या चीज है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, 1 से 12 के बीच में एक एक के इंटरवल पर, है ना, ये एक जनरेट कर रहा है अरे को। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, रन कर रहे हैं। क्या कर रहा है ये, है ना, जनरेट कर रहा है। देखिए कॉलम 1 to 12 कॉलम है इसमें, मीन्स ये एक रो एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 सारे डाटा है ना। अगर हम क्या कर दे 1 टू, यहाँ पे जस्ट हम कर दे रहे हैं 4। ओके, से 1 to 4 के बीच में एक एक के इंटरवल पे सारे नंबर ये जनरेट करेंगे, है ना। कोलन कोलन से सेपरेट करते हैं। इसको रन करते हैं, रन किया जाए तो सर ये वन अनाउंसमेंट इज देयर, स्टूडेंट प्लीज लिसन। आपका अटेंडेंस देने का टाइम जो है वो खत्म हो गया है, सो आई विल अलाउ वन मोर मिनट फॉर अटेंडेंस। इफ इन वन मिनट यू टाइप, दैट विल बी योर अटेंडेंस। इफ यू नॉट टाइप, सो वी विल नॉट कंसिडर योर अटेंडेंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो लोग टाइप कर दिए हैं ठीक है, नहीं टाइप किए हैं तो टाइप कर दीजिए। एक ही बार टाइप करिए और एक चैनल के नाम से एक ही नाम टाइप करिए। दो टाइप करिएगा तो आपका भी हटेगा, उनका भी हटेगा। अंडरस्टैंड? सो आप एक बार नाम टाइप करिए और अभी टाइप करिए विद इन अ मिनट। नाउ यू कैन कंटिन्यू सर। यस सर। तो ये अगर मैं 1 1 4 लिखूं तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 4, और इंटरवल क्या होगा 1 1 के इंटरवल पे ये जनरेट करेगा। तो इसको रन करता हूं, अब देखते हैं 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 0.5 कर दूं, 0.5, तो क्या करेगा 1 to 4 ये नंबर जनरेट करेगा एट इंटरवल ऑफ 0.5। तो जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट। सो दिस फर्स्ट वैल्यू इज 1, नेक्स्ट इज 1.5, नेक्स्ट इज 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Okay, likewise. Suppose I want 1 2 1 2 1 to 12 I want to write. So what we'll do 1 1 12. Okay, run this. So this is 1 to 12. But this 1 is default. You can remove this 1. Okay, 1 to 12. So default value of increment is 1. So this will also give the same value. See. तो अगर इंटरवल 1 के अलावा कुछ है तो आप कोलन कोलन करके दे सकते हैं। अगर इंटरवल 1 ही है तो सिंपली 1 to 12, 1 colon 12, है ना, कोलन नहीं सेमी कोलन है। 1 colon 12 मीन्स 1 to 12 ये एरे जनरेट करेगा, और ये क्या होगा, एक रो एलिमेंट होगा। ओके, नो इस जो 1 डायमेंशनल रो है जिसमें 12 एलिमेंट है और एलिमेंट का नाम जस्ट 1 to 12 है, इसको मैं रिसेव करना चाहता हूँ। किसमें मैं इसको रिसेव करना चाह रहा हूँ, चलिए इसको हटा देते हैं पहले। 3/4 मैट्रिक्स में, क्योंकि 12 एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि है ना 3 रो में और 4 कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाए ये सारे नंबर, है ना। तो चलिए इसको, इसका क्या है कमांड, तब b1 इक्वल टू रीसेप। किसको रीसेप करना है, ए को, है ना, और उसका रो कितना होना चाहिए 3 और कॉलम होना चाहिए 4।
तो ये कमांड है रीशेप विद इन ब्रैकेट मैट्रिक्स का नाम, देन रो नंबर, देन कॉलम नंबर। क्या मैचिंग करना चाहिए? 3/4 12 होना चाहिए, इसे मैच करना चाहिए तब होगा। अब रन करता हूं तो आप देखिए, है ना, ये मैं 1 से लेकर 12 तक था, अब ये 1 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गया, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, है ना। क्योंकि इसको क्या करना है, 3 रो बनाना है, तो 3 रो में फर्स्ट 1 2 3 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। ओके, सो दिस वे इज रिसेप। नाउ इफ आई वांट टू रिसेप इट different way, 2 6 means 2 row and 6 column, I want 2 row and 6 column। रन करता हूं इसको तो ये आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। और अगर मैं 6 2 में करना चाहूं तो रिसेप B3 इज इक्वल टू रिसेप A6 A6 2। रन करता हूं तो ये देखिए 1 2 6 1 2 12 जो था ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, रिसेप हो गया, जिसमें कि 6 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। करेक्ट, 1 2 3 6 7 8 9 10 12। ओके, सो दिस रिसेप कमांड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आप डील करते हैं ढेर सारे डाटा से, है ना। यहाँ का डाटा वहां रखना है, इसको कन्वर्ट करना रो में, रो को आप जब सिग्नल। हाँ सर, डियर स्टूडेंट, योर अटेंडेंस टाइम इज ओवर। आपका अटेंडेंस का टाइम खत्म हो चुका है, सो अब आप अटेंडेंस नहीं बनाइए, आपका अटेंडेंस तक का टाइम खत्म हो गया है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्विज कराएंगे थोड़ी देर बाद, आप यहीं अटेंड करिए और बने रहिए। आप छोड़ के जाएंगे सॉफ्टवेयर या विंडो तो आपका क्विज छूट जाएगा, फिर सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, हम चारों में मैच करेंगे। सो यू डोंट लीव दैट, हम क्विज यहीं इम्बेड किया है, आप यहाँ रहेंगे वही क्विज दे सकते हैं। सो नाउ सिंपल रहेगा इसी से एकदम, है ना। हम जो बता रहे हैं एक एक कमांड को आप समझिए और क्विज में सिंपल ही रहेगा, है ना सर। ओके, सो ये रिसेप कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सिंगल प्रोसेसिंग में लिखते हैं, जैसे कि मेरा डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। तो क्या होता है, मैं डाटा मेरा 2 डायमेंशन में होता है या 1 डायमेंशन में, तो जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो वहां हमको डायमेंशन चेंज करना पड़ता है ना। या आप एक इमेज को रीड कर रहे हैं, है ना, आपका चेहरा इमेज जब रीड हुआ तो 2 डायमेंशनल डाटा होगा, तो जब उसको कैलकुलेट करना होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो तो एक एक डाटा को पहले रो में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो वहां पे रिसेप रो से क्या, कॉलम में, कॉलम से मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से रो में, मैट्रिक्स से कॉलम में, सारे रिसेप का यूज करके, है ना, और अपने बुद्धि का यूज करते हुए हम कर लेते हैं, है ना। तो रिसेप कमांड आप समझ गए हैं। नेक्स्ट, तो कमेंट कर देता हूं, कंट्रोल आर। सॉर्टिंग कैसे करना है, ओके, लेट मी रिमूव दिस, कंट्रोल टी। सपोज I have some random number, okay, just I am writing executing this. A is equal to, what are the values in A? It contains 6 values, okay, 6 values or 7 values, 7 values, 1 2 3 4 5 6 7, okay, so randomly arranged. Now I want to sort out ascending order or descending order, so what I'll write, command is sort A comma descending order, and sort for ascending order, sort A comma ascend। लेकिन जब ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देता है तो यहाँ हम स्टोर, रिजल्ट 2 वैल्यू में स्टोर होता है, बी और इंड, है ना। बी बताता है कि डाटा क्या क्या है, और इंड बताता है उसका स्थान कौन सा था, इंडेक्स, है ना, विच पोजीशन। तो चले रन करके पहले देखते हैं, ये फर्स्ट वाला रन कर रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या, यहाँ पे नीचे रिजल्ट में आएगा मेरा, यहाँ पे बी, तो बी का वैल्यू क्या हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 9 7 5 4 3 2 1, ओके। तो ये सारे डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। बी में क्या स्टोर हुआ, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके वो डाटा को यहाँ पे रख दिया। अब इंड क्या बताएगा कि कौन सा इंडेक्स था, जैसे 9 कहाँ पे था, 9 कितना नंबर पे था, 1 2 3 4th नंबर पे, तो ये भी बता देगा, इंड में बताएगा कि ये 4th नंबर पे था, 9 कहाँ पे था, 4th नंबर पे। नेक्स्ट नंबर जो इससे छोटा था 7, वो किस नंबर पे था, किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे था। आप देख सकते हैं 7 कहाँ पे था, 6th पोजीशन में इधर से, ओके। सो ये सॉर्ट ए कोमा डिसेंड क्या कर रहा है, सॉर्ट भी कर रहा है और सॉर्ट करके वैल्यू को बी में रख रहा है और उसके इंडेक्स को भी बता रहा है। सिमिलरली लेट मी सी असेंडिंग ऑर्डर, दिस वन, ओके, एग्जीक्यूट। क्या कर रहा है ये, देखिए स्टार्ट कर रहा है, बी का वैल्यू क्या आ रहा है,
पहले ए का वैल्यू था क्या मेरा, रैंडम नंबर था, बी इसको सॉर्ट आउट किया, ओके, और क्या आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 7 9, सॉर्ट आउट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये बता रहा है कि 1 का इंडेक्स क्या था, 1 कहाँ पे था, 5th नंबर पे था, चेक कीजिए 1 कहाँ पे था, 5th नंबर है, इधर से 1 2 3 4 5th नंबर पे, इस तरह से 2 कहाँ पे है मेरा, 2nd नंबर पे ही है, तो ये उसके इंडेक्स को भी बता देता है, सॉर्ट भी कर देता है, ओके। कंट्रोल आर, नाउ मैक्स एंड मीन, ओके, maximum minimum all these values, control T. So let me define a is defined, so uncomment a, and then I am writing maximum value of a, okay. So a में क्या है 5 2 3, ये हम अभी 5 ही वैल्यू दिया है, मान लीजिए 100 वैल्यू 1000 वैल्यू है, उस 1000 वैल्यू में से कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है ना, कैसे पता चलेगा, तो कहां से पता चलेगा, यहां से मैक्स ए लिखने से, तो मैक्स वैल्यू क्या है ए का 19, देखिए आंसर में क्या आ गया 19, है ना। आप यहाँ पे इसको स्टोर भी कर सकते हैं, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, मैक्स ए, तो ये हम वेरिएबल का नाम दे दिए, अपने से डिफाइन कर दिया, मैक्स वैल्यू क्या स्टोर करेगा, ए के मैक्सिमम वैल्यू को, और इसको रन करूंगा मैं, तो मैक्स वैल्यू क्या आ रहा है 9, तो इसमें सब डाटा में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 9। अच्छा कितने नंबर पे है ये वैल्यू, हमको इंडेक्स भी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ये वाला सेकंड वाला, ओके, टू नो द इंडेक्स कि किस पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू आया वो भी बताएगा, x1 इंड 1, ओके, जस्ट रन दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 9, और कितने पोजीशन पे है वो 4th पोजीशन पे है, करेक्ट, ठीक, 1 2 3 4 4th पोजीशन पे है, और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ओके, x1 इंड 1 इक्वल टू मैक्स है, डन, दिस इज डन। नाउ मीन, ओके, कंट्रोल आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, है ना, तो ये भी बताएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, गड़बड़ कहाँ पे हुआ, मीन ए x2 इंड मीन ए, ये बता रहा है यूजिंग मीन नॉट एनफ इनपुट आर्ग्यूमेंट, ओके दिस, Sir, are you pressing Control R again and again? Is anything like that? A student asking that. Why you? हाँ हाँ, हम क्या कर रहे हैं F5 एग्जीक्यूट करने के लिए F5 दबाते हैं बार बार, है ना, या तो आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देखिए यह है, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ, मीन ए अभी दिखा रहा है यहाँ पे, और ये क्या दिखा रहा है, ये दो चीज मेरा अभी रन होना है, क्योंकि कॉलोन देखिए यहाँ नहीं दिए हैं, है ना, यहाँ कॉलोन नहीं है, तो ए को रन करेगा और मीन को रन करेगा। रन करने का दो तरीका है, एक तो हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर में, कहाँ, एडिटर में, एडिटर में यहाँ पे रन ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर में रन, तो उसके बगल में लिखा है सेव एंड रन F5, उसका शॉर्टकट है, तो यहाँ से मैं अगर रन करूंगा तो ये रन हो जा रहा है ना। दूसरा क्या है, मैं अपना कीबोर्ड में F5 को प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड में जैसे F5 प्रेस करते हैं तो वही काम हो जाता है शॉर्टकट में, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए का वैल्यू, ये रैंडम वैल्यू जो भी हम लिए थे, ए का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। फर्स्ट देखिए ए में क्या है 5 2 वॉट एवर वैल्यू इज हियर, 5 2 3 9 1 7 4, 5 2 7 ऑल द वैल्यूज। नाउ यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ ए कितना है, तब ये आंसर इक्वल टू 1। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है मीन, और कौन सा फंक्शन है, मैटलैब का अपना फंक्शन है खुद का, हम अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएंगे, वो बाद में है ना, इसी में आएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, और अगर इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में, कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किए हैं कि समथिंग इक्वल टू दिस, तो ये आंसर लिखेगा वहां पे, आंसर में इसको रिजल्ट को स्टोर करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं मीन वेल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मीन ए, तब यहाँ इसको रन कर रहा हूँ, अभी देखिए मैं अपने कीबोर्ड में F5 को प्रेस कर रहा हूँ, आप अगर लैपटॉप में कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं, एडिटर में जाके रन भी कर सकते हैं इसको, F5 प्रेस F5, आंसर इज हियर, मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1, ओके। अब इसका इंडेक्स चाहिए हमको, देखिए कितना नंबर पे है ये, 1 1 2 3 4 5th नंबर पे, तो ये वाला आप एग्जीक्यूट कीजिए, ओके, इसको हटा दीजिए, F5 मैं F5 डाल रहा हूँ, है ना, जिसको रन कराना हो उसमें कोलोन नहीं होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो कमांड विंडो में रिजल्ट देखने के लिए क्या करते हैं, उसको हम कोलोन को हटा देते हैं यहाँ पे, ओके। तो x2 इंड टू मीन ए, तो मिनिमम वैल्यू x2 में जाएगा और उसका इंडेक्स
पोजीशन, इंडेक्स मतलब पोजीशन, int2 में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये दो वेरिएबल है x2 और int2, जिसमें कि क्या स्टोर हो रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू और इसका पोजीशन। तो इसे रन करते हैं, F5 प्रेस कर रहा हूं मैं कीबोर्ड पे, तो ये आ गया 1 था, और कितना नंबर पे था वो, 5th पोजीशन पे था। ओके, यू कैन चेक। तो चलो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ अब, Ctrl R। नाउ फ्लोर और सीलिंग, है ना, फ्लोर और सीलिंग क्या चीज है, इसको देखते हैं। फ्लोर एंड सीलिंग, Ctrl T। फ्लोर आप पढ़े हैं, मिनिमम इंटीजर फंक्शन। ओके, मिनिमम इंटीजर फंक्शन, तो इसका इंटीजर पार्ट को अलग करके रख देगा। ओके, सो सपोज a1 इज इक्वल टू दिस, ये हम रन कर दिया हूँ F5 दबा के। ओके, हर समय आप जो क्वेश्चन पूछे थे बीच में, मैं F5 को, कोलोन को हटाता हूँ, F5 को प्रेस करता हूँ, है ना, तो ये रन हो जाता है। तो क्या हुआ, A1 में ये 1 2 3 4 वैल्यू आ रहा है ना, देखिए 1 2 3 4 वैल्यू यहाँ। ओके, तो ये सब एक ही रो में है, यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 दिखा रहा है ना, तो एक रो में ये चारों वैल्यू है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू। अब क्या करना है, हम सबको फ्लोर पे लाना है ना। तो क्या करेंगे, फ्लोर को हटा दिए, मैं रन कर रहा हूँ, प्रेस F5, तो सब फ्लोर में आ गया। 2.4 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 2। 3.6 का फ्लोर वैल्यू 3। -1.2 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये -2 सिंपल मैथमेटिक्स का है, यहाँ पे इससे कम होना चाहिए। फ्लोर वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन दिस, बट इट शुड बी इंटीजर। सो -1.2 से लेस इंटीजर क्या है, -2, एंड 4.5 का 4 आ गया। ओके, नाउ सीलिंग वैल्यू, सीलिंग वैल्यू जस्ट उसको ऊपर पहुंचा देगा, है ना, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज ग्रेटर देन दिस डाटा, दैट इज द सीलिंग वैल्यू। सो क्या है इसके लिए, सीलिंग A1, इसका जस्ट हम ये नाम रखे हैं, सील A1 इज द यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम। यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम कैन बी एनी नेम less than 32 characters. It should start with letter. It may contain the small or capital letter numbers, but it should not start with the number and underscore. Okay, ये हम शुरू में बता चुके हैं कि नंबर और अंडरस्कोर नहीं हो सकता है, 32 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता है। यूजर डिफाइन, तो आप कुछ भी डिफाइन कीजिए भाई, है ना। तो यूजर अपने सुविधा के लिए डिफाइन करता है, ये सीलिंग फंक्शन को कैलकुलेट कर रहा है, हम नाम रख दिए हैं सील अंडरस्कोर A1। ओके, सील अंडरस्कोर A1 एक वेरिएबल है, जो कि A1 क्या था, एक अरे था, 1 डायमेंशनल रो मैट्रिक्स, जिसके हर एक वैल्यू को सीलिंग पे पहुंचाने जा रहा है ये। चलिए इसको रन करता हूं, तो ये देखिए सब सीलिंग पे पहुंच गया, 2.43 पे पहुंच गया। सिमिलरली यू कैन चेक। तो ये दोनों हो गया। अब मैं बता रहा हूँ राउंड, है ना, राउंडिंग करना, है ना, फ्लोर पे भेजना, सीलिंग पे पहुंचा देना सब नंबर को, राउंड करना है, कंप्लीट डिफरेंट। तो आपको मैथ भी समझना है साथ में कि क्या हो रहा है ना, सारे एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा है नहीं। चलिए मैं राउंड करने जा रहा हूँ नंबर को, तो जस्ट रन कर रहा हूँ। अब राउंड इक्वल टू A1, राउंड A1 लिखे है ना, A1 का ये मेरा A1 था, इसको मैं राउंड कर दिया। राउंड उसके लिए क्या है, फंक्शन है, मेटलैब का फंक्शन। ओके, और इसको स्टोर कहाँ कर रहा हूँ, राउंड A1 में। तो इसको रन करता हूँ F5, तो ये नंबर आंसर दे रहा है, राउंड A1 इक्वल टू 2 4 -1 -5। अब समझिए कैसे राउंड हुआ, 2.4 को राउंड करेंगे, 5 से अगर नीचे है डेसिमल पार्ट तो वो 2 पे चला जा रहा है, 5 से ज्यादा है 3.6, तो कहाँ जा रहा है इसका वैल्यू 4 पर, है ना। राउंडिंग आप अच्छे से जानते हैं। ओके, तो ये राउंडिंग यहाँ पे हो रहा है। ओके, 4.5 कहाँ पे राउंड होगा, ये 5 पे चल जाएगा, 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट वैल्यू पे जाता है, और उसके लिए क्या है यहाँ पे राउंड, ROUND। ओके, नो लेट मी कमेंट ऑल दिस। और रैंड, है ना, रैंड को एक बार मैं फिर से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार चीज है यहाँ। Ctrl T, है ना, मैं समझाने क्या जा रहा हूँ। रैंड, रैंड एक रैंडम नंबर को जनरेट करता है। जैसे कि मैं अगर लिख दूं A2 इक्वल टू rand2, तो ये 2/2 रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए F5, so it is showing some A2 is earlier also there here, so just comment this. Okay, there anywhere here also, so just comment all this. I'm commenting everything. Okay, only uncommented is which one, this A2 is equal to rand2. Now just run this, क्या गड़बड़ है, RANDI. Okay, here also we need one comment line. So now
इफ देर इज सम एरर, सम लाइन जो कि इसका जैसे कि RAND क्या है, इसका रैंड नंबर जनरेट करता है, रैंडम नंबर, यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये मैटलैब का अपना खुद का डिफाइंड फंक्शन है। तो इस फंक्शन में अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी कर दूं, यहाँ इक्वल साइन हटा दूं, तो ये एरर देता है। तो यहाँ पे एक कमांड लिखा हुआ था जो कि एरर दे रहा था, जिसको मैं कमेंट कर दिया हूँ अभी। तो अब मैं रन कर रहा हूँ फिर से। तो A2 क्या कर रहा है, A2 में स्टोर हो रहा है 2x2 रैंडम नंबर। 2 क्या बता रहा है, साइज 2x2 स्क्वायर, है ना। तो ये 2x2 4 नंबर जनरेट हो गया है ना। ये एक मैट्रिक्स है 2x2, जो कि 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर है। ओके, जस्ट कमेंट दिस। नो, अगर मैं 1 3 देता हूं तब क्या होता है, इसको मैं रन कर रहा हूं। तो ये 1/3, ये क्या है, मेरा साइज है, मैट्रिक्स का साइज, है ना। 1 रो 3 कॉलम, है ना। तो 1 रो 3 कॉलम रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ओके, A3 इक्वल टू रैंड 1 3, A4 इक्वल टू रैंड 3 1। तो क्या आएगा यहाँ पे ना, 3/1 रैंडम नंबर देगा। ये रन कर रहा हूँ, देखिए 3/1 ये रैंडम नंबर है 0 से 1 के बीच में। क्या जरूरत पड़ गया रैंडम नंबर का, है ना। तो जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, देयर आर सो मेनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, है ना, वहां पे रैंडम नंबर का यूज किया जाता है। अब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन यूज करता है ना। आप देख रहे हो गूगल को, गूगल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज कर रहा है ना। आप कुछ भी वर्ड टाइप करते हो तुरंत खोज दे रहा है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अमेजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज कर रहा है। फ्लिपकार्ट, जो बड़े बड़े कंपनी है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं और आपके तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, है ना। आपके मन में क्या है वो जान लेते हैं किस चीज से, यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्या यूज होता है, रैंडम नंबर बहुत ज्यादा यूज होता है। वो कंसेप्चुअल है, जब आप डेप्थ में जाएंगे, ये फंडामेंटल मतलब है, और 1 घंटा का वेबिनार 2 घंटा का वेबिनार है, तो इसमें नहीं समझ में आएगा। जस्ट यू नीड टू नो ईच एंड एवरी कमांड एटलीस्ट, है ना, सारे फंक्शन का क्या यूज है। तो नेक्स्ट में बता रहा हूं, ये हो गया 3 1 3 2 रैंड 3 2, क्या बताएगा ये, 3/2 रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। सी 3/2 एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। नो, व्हाट इज रैंड आई, इसको पढ़ते हैं रैंड आई। इंटेजर, इंटेजर रैंडम को जनरेट करेगा। अभी तक जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था ये फ्रैक्शन था, देखिए, है ना। हमको चाहिए क्या चीज, इंटेजर वैल्यू। ओके, इंटेजर वैल्यू। तो इसको कमेंट किया है, मतलब जस्ट ये हेडिंग है मेरा, ये मेरा हेडिंग है, और नीचे इसका वैल्यू दिया गया है। तो 374 लिखा हूं, है ना। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसको हटा दूं पहले, रन कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, 3/7 क्या है, 3/7 ऑर्डर है, मतलब नहीं नहीं, 7/4 ऑर्डर है। क्या चीज ऑर्डर है, 7/4, 7 रो और 4 कॉलम। देखिए 7 रो है इसमें रिजल्ट में, 7 रो और 4 कॉलम, लेकिन ये 3 बता रहा है क्या चीज, 1 से लेकर 3, रैंडम नंबर जो जनरेट होगा 1 से लेकर मैक्सिमम 3 तक ही जाएगा। देखिए सारा नंबर 1 और 3 के बीच में है, करेक्ट। अगर मैं यहां दे देता हूं 10, तो ये 7/4 रैंडम नंबर जनरेट करेगा, है ना, किसके किसके बीच, 1 से 10 के बीच। ओके, तो इसको रन कर रहा हूं। देखिए ये 7 रो और 4 कॉलम है, और सारे नंबर रैंडमली जनरेट हुआ है, लेकिन वो नंबर मेरा 1 से 10 के बीच में ही है। कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, 1 से न कम है न 10 से ज्यादा है। ओके, सो रैंड आई मीन्स रैंडम इंटेजर नंबर, रैंडम, रैंड फॉर रैंडम, आई फॉर इंटेजर, है ना। 10 फॉर 1 to 10, 7 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, हमने ढेर सारा कोड जेनेटिक एल्गोरिथम में लिख रखा है, डिजिटल फूरियर, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिख के रखा है ना, ढेर सारा रिंग रेजोनेटर, ये वो तो सब जगह मैं यूज कर चुका हूँ सारे फंक्शन को। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ फिर से मैजिक आ गया, मैजिक आप देख चुके हैं, फाइंड। चलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है, कंट्रोल टी। तो फाइंड का यूज कैसे करते हैं, मैजिक फाइंड, है ना, हम सिखाने जा रहे हैं एप्लीकेशन फाइंड। तो डी इजकल टू मैजिक 3, तो आप जान ही रहे हैं, बना देगा। अब फाइंड का यूज कैसे होगा भाई, चलिए इसको मैं हटा दो पहले, इधर सबको कमेंट कर देता हूँ पहले, शुड बी कमेंटेड। ओके, सो डी इजकल टू मैजिक 3। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, स्टूडेंट राइटिंग इट इज लेस विजिबल। अच्छा, और बड़ा कर दें,
यस यस सर, यस सर। ओके 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 सर। तो फॉन्ट साइज बड़ा करें या ये फॉन्ट साइज ही बड़ा करें ना? सर फॉन्ट बड़ा कर दें। फॉन्ट 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 को बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ट्वेंटी फोर। अब दिख रहा है कि और बड़ा करें? हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है ना। तब रिजल्ट विंडो इधर थोड़ा सा जल्दी से नहीं दिखेगा अब, है ना। तो मैं इसलिए छोटा रखा था कि दोनों विंडो एक साथ दिख जाए। ये रिजल्ट जो आ रहा है तो ये जस्ट हमको यहाँ स्विच करना पड़ जा रहा है ना। इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, मैजिक 3 पहले लिख दिए, है ना। जो ये मैजिक 3 एलिमेंट बनाता है, यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे दे रहा है। ओके, जैसे पहले मैजिक 3 किए थे, 3x3 एक मैट्रिक्स बनाता है जिसमें कि ईच रो ईच कॉलम का नंबर सेम होता है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको एक मैट्रिक्स से मतलब है जिसमें कि 9 एलिमेंट हो, 3x3 हो। तब मैजिक 3 का देखिए यहाँ एप्लीकेशन किए, हमको फाइंड यूज करना है। तो फाइंड डी, है ना, ये डी है, इसको यहाँ रख दिए। और RC भी ये बताएगा कि डी जो है मेरा मैट्रिक्स, डी जो मैजिक मैट्रिक्स था उसका एक एक एलिमेंट का रो का वैल्यू क्या है, कॉलम का वैल्यू क्या है, और एग्जैक्ट में वो वैल्यू 0 है या 1 है ना, निगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, ये भी में बताएगा, है ना। इसको चल मैं रन कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये RC भी क्या स्टोर करेगा, डी के एक एक एलिमेंट का रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, और वो पॉजिटिव है या निगेटिव वैल्यू, है ना। अगर निगेटिव है तो 0 और पॉजिटिव है तो 1, ये भी बताएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ जस्ट, क्योंकि ये जो जनरेट होगा वो कॉलम मैट्रिक्स में मैं सबको ट्रांसपोज ले लिया हूँ, इसका भी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज, और इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन। तो जब रन करेंगे हम तो ये, क्योंकि विंडो दिखेगा नहीं, जब बड़ा हो गया है, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ तो फिर हमको स्विच करने में प्रॉब्लम होगा यहाँ वहाँ, है ना। मैं इसको इधर कर रहा हूँ, रन। तो ये इसको हम रन कर दिए हैं, है ना। सबसे ऊपर से हम देखते हैं कि ये डी मैट्रिक्स है मेरा, पहला एलिमेंट क्या है 8, तो इसका रो 1 है और कॉलम क्या चीज है 1 है ना, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो इसका 8 की जगह देखिए रो का वैल्यू 1 है, कॉलम का वैल्यू क्या चीज है, तब कॉलम का वैल्यू भी 1 है पहला, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 8, तो ये चीज बता रहा है RC भी है। चलिए दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट यहाँ पे इधर से हम देखते हैं 3 है ना। तो रो इसका क्या है 2, देखिए रो क्या है 2, और कॉलम क्या चीज है इसका 1, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा कॉलम का 1। ओके, और ये कितना वैल्यू है, तब वैल्यू किस में स्टोर होगा, V में, तब वैल्यू कितना पे है V इक्वल टू 3। ओके, तो इस तरह से ये स्टोर कर रहा है। ओके, Student asking for the quiz link, so हाँ, how will be the expected time? क्विज का एक्सपेक्टेड टाइम 15 मिनट सर, Okay sir, 15 to 20 मिनट्स। okay sir, and how minute lecture will continue? लेक्चर एज यू विश सर, हम इसको 12-20 हो गया है तो और 20 मिनट कर दे रहे हैं, 20 मिनट्स मोर। Okay sir, so है ना। dear student, we will launch our quiz after 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हम हाँ, क्विज स्टार्ट करेंगे, और जो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, जो देखेंगे वही दे पाएंगे। हमने इसको इसमें ऐसा बना के रखा है कि आपको अटेंड करेंगे तभी आप सर्टिफिकेट ले पाएंगे। इट इज नॉट सो इजी, इट इज इवन द सब्जेक्ट इज टफ MATLAB एंड इट इज वेरी यूजफुल। द प्रॉब्लम इज नॉट फॉर द सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। So you just wait 15 मिनट, after 15 मिनट we will launch our quiz. So जो present रहेंगे वही दे पाएंगे। Now you can continue sir. okay sir, और sir I have sent you quiz also in the mail, or you can set that however। okay sir, कहाँ पे थे, यस। अब हम बताने जा रहे हैं प्लॉट, है ना, किस तरह से प्लॉट करते हैं। ओके, तो जस्ट मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। x इक्वल टू 1 to 10 क्या मतलब होगा, 1 से लेकर 10 तक, है ना। y1 इक्वल टू x, तो y1 जस्ट x को स्टोर कर लेगा। y2 इक्वल टू x स्क्वायर, y2 में क्या स्टोर होगा x स्क्वायर, मीन्स एलिमेंट बाय एलिमेंट का स्क्वायर। चलिए इस तीनों का
अगर हम देखना चाहें, इसको मैं अभी कमेंटेड रखता हूं, है ना। ये 3 लाइन हम लिखे हुए हैं, है ना। x 1 से 10 तक एक रो मैट्रिक्स है, y1 में x ही है और y2 में x का स्क्वायर है, डॉट स्क्वायर लिखे हैं, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट का स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं रन करके देखूं, रन, तो ये आ गया मेरा रिजल्ट यहाँ पे। अच्छा, इसके पहले का भी वैल्यू ये यहाँ पे ले रहा है, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट x। तो हम क्या किए हैं, x 1 से 10 तक, है ना। तो 1 से 10 तक देखिए 1 2 3 4 10 ले लिया x का वैल्यू। नेक्स्ट y1 में सेम वही है जो x है, तो y1 में भी वही है सेम। y2 क्या है, x का स्क्वायर है, देखिए 1 4 9 16 25 सारा आ रहा है। अब मुझे प्लॉट करना है ना, क्या प्लॉट करना है, फर्स्ट एक्स वाई, है ना। तो प्लॉट x कोमा y1 लिखेंगे, ये y1 में x है तो ये लीनियर होगा, है ना। तो मैं जस्ट रन कर रहा हूँ, इसको रन करेंगे हम इसको, तो ये अभी प्लॉट दिख रहा है कि मैं स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे अभी। सर, इज द फिगर विजिबल, मनोज सर? नो सर, फिगर नो, इज नॉट। ओके, तो मैं स्विच कर दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे, क्योंकि इसमें फिगर जो जनरेट हो रहा है, स्विच करता हूँ मैं। यस ओके, सर, रिमूव एंड जस्ट शेयर। या स्टॉप शेयर एंड अगेन शेयर, तो रन कर रहा हूँ, तो ये फिगर दिख रहा है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस में 1 to 10 और वाई एक्सिस में भी 1 to 10 गया है, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स। ओके, नाउ आई एम स्विचिंग, नाउ ओके, शेयर स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट इज y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको भी अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो क्या करेंगे हम, क्या लिखे हैं, प्लॉट x y2, तो एक्स स्क्वायर को ये प्लॉट करेगा। ओके, तो इसको भी मैं जस्ट रन करता हूँ और मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, है ना। स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर अगेन, तो ये दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर का है ग्राफ। ओके, तो प्लॉट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, तो ये एक्स एक्सिस इधर है, इधर वाई एक्सिस है, ये स्क्वायर वैल्यू को प्लॉट कर रहा है। ओके, स्टॉप शेयरिंग, अगेन स्क्रीन शेयर, या नाउ इस तरह से हम, है ना, पहले तो एक्स का रेंज को डिफाइन कर देते हैं कि कहां से कहां तक एक्स जाएगा। उसके बाद फंक्शन डिफाइन आप लिखते जाइए, सिंपल, y1 इक्वल टू एक्स, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y3 इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो ये प्लॉट आपका हो गया। अब हम देखेंगे कि प्लॉट में और भी ढेर सारा करामत कैसे करते हैं, जो कि प्लॉट हमको खूब अच्छा दिखे, है ना। अच्छा प्लॉट दिखने के लिए ये ढेर चीज उसमें हम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेम है 1 से 10 तक एक्स है मेरा, इसको जस्ट मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंट्रोल टी। एक्स से एक्स क्या है, 1 to 10, है ना। y1 है x माइनस 5 स्क्वायर, और इसको प्लॉट करना है x1 y1। कलर होना चाहिए रेड, लाइन होना चाहिए ये लाइन विड्थ 4, मार्कर साइज, मार्कर कलर के, मार्कर फेस कलर, मार्कर साइज, x लिमिट 1 to 9, है ना, y लिमिट 0 to 4, ग्रिड ऑन होना चाहिए, x लेवल में ये चीज लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, वैल्यू x वैल्यू, फॉन्ट साइज होना चाहिए 18, फॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए, कलर बी। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये सारे चीज जब करूंगा तो बहुत अच्छा मेरा प्लॉट दिखेगा, है ना। क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक्स वाई को प्लॉट कर रहा है, इसके बाद में, है ना, उसका प्लॉट का कलर कितना विड्थ होना चाहिए, लाइन विड्थ, तो अच्छा दिखेगा, लाइन विड्थ, मार्कर भी डिफाइन कर सकते हैं, मार्कर साइज, मार्कर का कलर। ओके, फिर एक्स में नीचे में क्या लिखा होना चाहिए, एक्स वैल्यू लिखा होना चाहिए, किस कलर में, है ना, क्या साइज में, तो ये सारी चीज मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरा फंक्शन जनरेट होगा, अब जस्ट मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये जनरेट हो गया, दिख रहा है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ नीचे में एक्स वैल्यू दिखा रहा है, राइट साइड में वाई इजकल टू ये। ओके, और ये देखिए मेरा एकदम फंट का विड्थ क्या इसका हो गया है, लाइन विड्थ 4 है, मार्कर का साइज देखिए काला है, ब्लैक, है ना। तो ये बहुत अच्छा ग्राफ हमको दिख रहा है, तो इसमें ग्राफ में सेटिंग किए हैं सारा कुछ। ओके, जस्ट मैं अनशेयर कर रहा हूँ फिर से, क्लियर है, ये विजिबल है ग्राफ। तो इस तरह से हम
ये सारे सेटिंग को आपको अच्छे से याद कर लेना, या आप स्क्रीन इसका फोटो ले लीजिए, सेव कर लीजिए, है ना। इसमें से आपको जो रखना है, कोई जरूरी कि सारा चीज हमेशा हमको यूज करना पड़े, बट ये मैक्सिमम ये सब प्लॉट में सेटिंग हम करते हैं। नेक्स्ट, हम दिखाते हैं कि 2-3 फिगर को एक साथ कैसे दिखाएंगे, है ना। तो कंट्रोल टी, x इक्वल टू 1 to 10, y1 इक्वल टू x, y2 इक्वल टू x स्क्वायर, y3 इक्वल टू साइन x। 3 फिगर है मेरा, है ना। प्लॉट x y1, प्लॉट x y2, प्लॉट x y3। तो बीच में हम क्या देते हैं, फिगर। तो 3 अलग अलग फिगर आएगा। अगर बीच में मैं फिगर नहीं लिखूं तो लास्ट फिगर को शो करेगा। ओके, तो अब यहाँ 3 फिगर्स एक साथ जनरेट होंगे। मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन। तो 3 फिगर्स आर जनरेटेड। नाउ लेट मी शो यू ऑल दिस। तो यहाँ पे आपको तीनों फिगर दिखेंगे। ये एक फिगर हुआ साइन एक्स का, फिगर नंबर 3। ओके, दिस इज अनदर फिगर। अनदर फिगर इज, दिस इज द फर्स्ट फिगर। ओके, एंड you can see the second figure. This is the second figure, x square. Okay, so all the figures are being generated. Okay, now I want, let me close the windows. Now I want all the 3 figures in one, है ना। तो इसको मैं कमेंट कर ले रहा हूँ, all the 3। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब प्लॉट। ओके, सब प्लॉट टी। तो फंक्शन वही है मेरा, x 1 से 10 तक जा रहा है, y1 x है, y2 x स्क्वायर है, y3 x - 5 होल स्क्वायर है। अब मैं सब प्लॉट करूंगा। सब प्लॉट कैसे यूज करते हैं, तो सब प्लॉट 2,2 बता रहा है, 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 4 फिगर है मेरा, है ना। 2 मीन्स 4 फिगर्स आर देयर। और इस 4 फिगर्स में क्या है, फर्स्ट फिगर को यहाँ फर्स्ट जो लिख रहे हैं, फर्स्ट फिगर क्या होगा मेरा, ये प्लॉट x y1। इस तरह से सब प्लॉट 2 मीन्स 2 रो और 2 कॉलम मीन्स 4 फिगर हमको देना है, जिसमें कि दूसरा सब प्लॉट क्या है मेरा, 2 मीन्स 2 रो और 2 कॉलम है फिगर में, जिसमें कि दूसरा फिगर क्या होगा मेरा, ये वाला y2। और इस तरह तीसरा फिगर क्या होगा, y3। तो सब प्लॉट लिखते हैं, 2,1, 2,2, 2,2, 3, है ना। तो 2,2 बता रहा है मेरा क्या, 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 4 फिगर होगा, जिसमें कि पहला फिगर ये होगा, दूसरा फिगर ये वाला होगा, तीसरा फिगर ये वाला होगा, है ना। इसको जैसे मैं रन करूंगा तो ये हमको दिखेगा। रन कर रहा हूँ तो रिजल्ट आया, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, शेयर स्क्रीन। तो ये देखिए तीनों एक ही में आ गया है ना। ऑल द 3 फिगर्स आर इन वन। So this is first, this is second, and another is third. Okay. Okay, let me share again. तो ये सब प्लॉट हम सीख लिए। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। इसके बाद है लीन स्पेस कैसे यूज करते हैं, लिनियरली स्पेस्ड, है ना। तो जो हम x का वैल्यू हम यहाँ से डाल रहे थे 1:10, इसको हम लिनियरली स्पेस्ड से भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ना, लीन स्पेस यूज करके। सेम चीज होगा, साइन कॉस टेन को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ओके, लेट मी शो दिस आल्सो। सो प्लॉटिंग में इससे ज्यादा हम नहीं दिखा रहे हैं, ये काफी यहाँ पे एंड हो जा रहा है मेरा, है ना। उसके बाद है मेरा यहाँ पे और बहुत सारा, देखिए आप देखिए टेस्ट 2। ओके, अरिथमेटिक फंक्शन को बता दे रहा हूँ जस्ट 2 मिनट में, है ना। जस्ट 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं सर, जस्ट 2 मिनट का। So dear participant, you just wait 1 minute. And now I hope you have attended carefully. So we will launch the quiz session very soon. I am going to launch quiz session very soon. So those who has left, please also you can call him to present here. We are going to start the quiz very soon. So you just wait 1 minute. We are just launching the quiz. It will take 1 minute.
और जो लोग छोड़ करके किसी दूसरे वर्क में बिजी हैं, यू कैन कॉल हिम टू अपीयर इन द क्विज. So you have attended carefully, so you should appear in the quiz. We are sending. So hello, I am back. So I am explaining how to write a function. Is it visible, sir? Hello? Yes, it is visible. Yeah. तो फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहला ये कीवर्ड है इसका फंक्शन, एफ है ना. फंक्शन लिखना ही लिखना है, ये कीवर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. इस वर्ड में कैपिटल एफ कर दिए या यू छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा. तो फंक्शन सबसे पहले लिख लेना है. ये मेरा है आउटपुट, है ना. फंक्शन का आउटपुट मेरा 4 वैल्यू है, y1 y2 y3 y4. इसको इसी पैरेंथेसिस में ही रखना है, इसी कोड में ब्रैकेट में रखना है ना. उसके बाद इक्वल साइन देते हैं, है ना. फंक्शन ये 4 आउटपुट है इज इक्वल टू, ये फंक्शन का नाम है. व्हाट इज दिस? नेम ऑफ द फंक्शन अरिथ फन. तो ये यूजर डिफाइंड है, यूजर इस फंक्शन का कोई भी नाम दे सकता है. ओके, तो मैं अरिथमेटिक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ अरिथ फन. ओके, और ये है इनपुट आर्गुमेंट x1 x2, है ना. x1 x2 इनपुट आर्गुमेंट्स, और ये 4 आउटपुट आर्गुमेंट है. अब क्या क्या हो रहा है, तब नीचे में फंक्शन को डिफाइन किया जाता है. ओके, तो ये हेडिंग में हम इनपुट आर्गुमेंट, नेम ऑफ द फंक्शन, आउटपुट आर्गुमेंट्स एंड द कीवर्ड फंक्शन देता हूं, तो फंक्शन डिफाइन हो जाता है. अब नीचे में मैं इस फंक्शन के बॉडी में डिफाइन करता हूं कि क्या है फंक्शन. तो y1 है, आउटपुट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन. आउटपुट क्या है? y1 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में हम मेरा इनपुट में जो दे हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए एक्सप्रेशन. तो y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज द सम, y2 इज इक्वल टू डिफरेंस, y3 इज इक्वल टू क्या है? मल्टीप्लिकेशन, एंड y4 इज इक्वल टू डिवीजन. तो ये सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, कोसेंट, ये 4 चीज को कैलकुलेट करेगा ये फंक्शन. तो फंक्शन को क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है ना. कहां से कॉल करें? इसको 2 जगह से कॉल कर सकते हैं आप. इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल कॉल करने के लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको जस्ट यहाँ पे लिखिए. कहाँ पे? 2 तरीका कॉल करने का. एक तो कमांड में डायरेक्ट उसको अगर मैं पुट कर दूं कंट्रोल V, और x1 x2 का वैल्यू दे दीजिए तब, है ना. मान लीजिए ये है 5 और x2 क्या है मेरा 2. ओके, और इसको इंटर मार दीजिए. तो ये सारे वैल्यू दे रहा है ना, 5 2. तो इसको सम करेंगे तो कितना होगा? 7. डिफरेंस 5 - 2 3, मल्टीप्लाई 5 × 2 10, एंड डिवीजन 5 by 2 is 2.5. सो ऑल द वैल्यूज 4 वैल्यूज आर हियर. दूसरा तरीका है कॉल करने का कि एक हम नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये test2 है ना, वहां पे हम इसको कॉल कर लेते हैं. कैसे कॉल करेंगे इसको? हम कंट्रोल V, एक नया मेट फाइल डिफाइन करते हैं, m फाइल, इसको हम सेव कर दिए test2.m से. यहाँ पे हम लिखते हैं क्लियर ऑल, और हम इस फंक्शन को कॉल कर लिए, है ना. x1 x2 का वैल्यू आप यहाँ पे दे दीजिए, है ना. चलिए, मेरा x1 है कितना? x1 इक्वल टू 5, और y1 कितना है? 2. मान लेते हैं ये 2 वैल्यू है मेरा x1 y1. ओके, और मैं इस क्या कॉल कर रहा हूँ? अरिथमेटिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, स्टोर इसमें डाटा होना चाहिए. तो जैसे मैं रन करूंगा इसको, रन, यहाँ बता रहा है x2 गड़बड़ है. क्या चीज है? x1, और ये x2 होना चाहिए यहाँ पे, है ना.
ये डाटा शुड बी x2। तो ये इनपुट का वैल्यू हमको यहाँ देना है, ये इनपुट कितना है 5 और 2, तो ये इनपुट यहाँ पे जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट करेगा। रन कर रहा हूँ इसको, है ना, तब ये रन हो गया है मेरा। क्या चीज है, y1 y2 y3 एंड y4 स्टोर्स ऑल द 4 वैल्यूज, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट। ओके, सो दिस इज अरिथमेटिक फंक्शन डन। हाउ इट इज बीइंग कॉल्ड, कॉल कैसे करते हैं, दो तरीके से, एक तो कमांड विंडो से कॉल कर सकते हैं, एक डायरेक्टली आप एडिट विंडो में .m फाइल से इसको सेव कीजिए और कॉल कीजिए, है ना। दूसरा अरिथफंक हो गया, दूसरा है माई सिलेंडर। जैसे इस तरह से सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन एस ए क्या स्टोर करेगा, सरफेस एरिया, भी वॉल्यूम, फंक्शन का नाम है माई सिलेंडर, और इसका इनपुट में क्या है आर और एच, रेडियस एंड हाइट। तब हम नीचे फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लीकेशन साइन देना है, डायरेक्ट 2 पाई आर एच नहीं लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एच। सो पी आई इज द पाई इन मतलब, ओके, एंड v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये कैलकुलेट करेगा सरफेस एरिया को। चलिए इसको कॉल करता हूं मैं, इसको यहाँ ले लिया हूँ, कंट्रोल सी, ओके, और जस्ट यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल वी, और आर कुछ दे दीजिए, आर दे दीजिए, है ना, कितना पाई, और एच कितना है मान लीजिए 5। ओके, इंटर करता हूँ, तो सरफेस एरिया कितना 98 और वॉल्यूम क्या 1.155। ओके, सो दिस इज द अनदर एग्जांपल। नाउ माई मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एक मेरा मेन फंक्शन होगा, टाइम हो गया है और मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है ना, क्योंकि ये मतलब एक दिन का नहीं है, 5 दिन अगर कंटिन्यूस चेक करें तब पर भी खत्म नहीं होता है ना। तो क्या सर, शैल आई कंटिन्यू 2-3 मिनट्स और शैल आई क्लोज? यस सर, यू कैन कंटिन्यू। कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारा एक दिन में तो हो ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा इसमें होता है चीज शो करने के लिए। एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच function. So dear student, we have given a quiz link. ओके, सो आप यहीं बने रहिए, अभी आप छोड़ के चले नहीं जाइए। ओके, आपको क्विज लिंक दिया गया है, वो क्विज और फीडबैक दोनों एक ही में है, आपको इसको ध्यान से फिलअप करना है। ओके, और आप इधर उधर शेयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वी विल मैच ऑल द डेटा। सो ये बिना अटेंड किए भरना जो है कोई फायदे का काम नहीं है, क्योंकि आपका अटेंडेंस हमने ले लिया है, तो वहाँ से हम मैच करेंगे, ठीक। सो आप इधर उधर शेयर नहीं करेंगे, और जो अटेंड किए हैं वही फिलअप करेंगे, बाकी लोग नहीं करिए। और हमने क्विज का लिंक दे दिया है यहाँ, आप इसको फिलअप कर सकते हैं, बट आप यहाँ बने रहिए। और वी विल हेयर, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू अटेम्प्ट द क्विज, यू जस्ट ज्वाइन अगेन and don't leave now, we are continuing 2 to 4 minutes more, 5 minutes, so you just wait. Now you can continue, sir. Okay, I'll take just for 5 minutes. Okay, so function, scientific function. So function, this is the keyword, output are these 4 values, and I'm writing my sc fun, my scientific function input is only one, x. So I'm writing first y1 is equal to e to the power x, means exponent x, y2 log x, y3 sin x, y4 sin hyperbolic x. Okay, so you can call all these 4 by one writing like this. Okay, this, suppose I want to call this, what I'll do, I'll copy this, okay, and test2, here I am just calling the function x value I am giving 3. okay, so my scientific function वहां लिख लिए हैं, इसको मैं इनपुट आर्गुमेंट डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया हूँ, और इसका स्टोर करेगा ये क्या चीज, लॉगरिथम, क्या क्या वैल्यू था उसमें, इसमें था साइंटिफिक में क्या चीज, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, साइन, साइन हाइपरबोलिक, तो ये सारे यहाँ पे मैं कॉल कर लिया हूँ, है ना। माई फंक्शन को कॉल किया हूँ, इनपुट दिया हूँ, आउटपुट इसमें स्टोर होगा। तो इसको रन जैसे करते हैं हम, है ना, तो ये देखिए मेरा सारा वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, y1 y2 y3 y4। ओके, एक्सपोनेंट, लॉग, साइन, साइन हाइपरबोलिक। इसमें से हमको चाहिए सिर्फ एक ही वैल्यू, तब क्या करें, है ना, आई नीड ओनली वन वैल्यू। तब हम क्या करते हैं, वहाँ टिल्ड ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए मैं साइंटिफिक फंक्शन, जस्ट एक और एग्जांपल ये बता दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। ओके, कंट्रोल वी, यहाँ कोलन,
हमको सिर्फ y1 चाहिए, y2 y3 y4 का वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे टिल्ड 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 लगाते हैं, कोमा से सेपरेट हो जाता है। ओके, जैसे रन कर रहा हूं मैं, y1 2 3 4 x का वैल्यू देना है, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू मैं 3 दे रहा हूँ, रन करें। तो ये सिर्फ y1 के वैल्यू को दे रहा है। ओके, टिल्ड से, अगर यहाँ पे टिल्ड में लगा दूं y1 के जगह टिल्ड, और जस्ट y2 के जगह मैं यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि y2 है, कुछ भी लिखे, मान लीजिए हमें r लिख दिया, तो r में स्टोर कर लेगा सेकेंड वैल्यू। ओके, तो जस्ट मैं रन कर रहा हूँ इसको, देखिए सेकेंड वैल्यू जो भी था उसका ये यहाँ पे स्टोर हो गया है। आप चेक कर सकते हैं सेकेंड वैल्यू है कि नहीं, तो इसको भी रन कर दे रहा हूँ एक साथ, जस्ट रन रन। तो मेरा सेकेंड वैल्यू क्या था, y2 0.1411, तो देखिए r में वही वैल्यू आ रहा है, सेकेंड वैल्यू। ओके, माय फंक्शन y1 1 point this, okay, y2 is 1.09 and here also the same value। okay, तो जो वैल्यू आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, टिल्ड टिल्ड लगाइए, जो वैल्यू चाहिए वहां पे वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डिफरेंट वे। और अगर आपको चाहिए तो माई सिलेंडर लिखा हुआ है, माई मल्टीपल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस तरह से लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शन में एक मेन फंक्शन होता है ना, उसका फंक्शन ये है मल्टीपल फंक्शन। इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अनदर फंक्शन को, रिजल्ट इक्वल टू सम ऑफ फंक्शन ए बी प्लस प्रोडक्ट फंक्शन ए बी। तो ये देखिए फिर से एक फंक्शन को कॉल कर लिया गया है इसी फंक्शन के अंदर, और इस जिसको कॉल किया गया है उसको अलग से डिफाइन नहीं करेंगे, इसी के अंदर में हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए है ना, फंक्शन डिफरेंस इज इक्वल टू सम फन, है ना, यहाँ डिफरेंस नहीं, यहाँ सम कर दीजिए इसको, सम फन, सम वैल्यू। ओके, सम वैल्यू, यहाँ पे आप सम वैल्यू कर दीजिए, सम वैल्यू ओके ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक फंक्शन को देखिए अंदर में डिफाइन किया है हम, सम भी, फंक्शन का नाम क्या है ये, और सम भी इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह से हम प्रोडक्ट को डिफाइन किए हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन ए बी, और प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ओके, और दोनों को कॉल कर लिया हूँ यहाँ मेन फंक्शन में, है मेन फंक्शन का आउटपुट क्या है, रिजल्ट, जो कि फंक्शन का नाम है माई मल्टीपल फंक्शन और इनपुट आर्गुमेंट है ए बी। तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो रहा है, सम फंक्शन ए बी प्लस प्रोडक्ट फंक्शन ए बी, है ना। तो ये कैलकुलेट क्या करेगा, व्हाट एवर ए बी को हम देंगे उसका सम प्लस उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सम को ऐड कर देगा आपस में। ओके, तो इसको भी कॉल किया जा सकता है ना। तो इतना ही, इसमें मैं कैलकुलेट हटा रहा हूँ, मेरा डीएफटी है, किस तरह से डीएफटी को कैलकुलेट करते हैं, ये लंबा सा फंक्शन लिखा गया है, इसको जब रन करेंगे तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म देगा, है ना। ये डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करके देता है ना। 2x2 एक एलिमेंट है, इस तरह से इसमें मेरा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे दिखा रहा हूँ, है ना। कोई एक इमेज में लोगो है, लोगो डॉट पीएनजी, इसको रीड करना है ना, तो क्या लिखते हैं, आई एम रीड दिस लोगो। ओके, जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये रीड कर लेगा, है ना। ये लोगो को रीड किया है, बहुत लंबा उसका है डाटा, देखिए, है ना। क्या लोगो था उसको जानना है कि लोगो क्या है, क्या चीज। तो h1 इक्वल टू इमेज शो, है ना, हम चाहते हैं इस इमेज को दिखाए, क्या चीज ये इमेज है अखिल भाई। तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे ये दिखाएगा, है ना। अभी आपको इमेज नहीं दिख रहा है, अब हम इसको शेयर कर रहे हैं तो दिख जाएगा। देखिए ये क्या है इमेज आखिर। तो ये मैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में पहुंच गया हूँ, एप्लीकेशन, है ना। तो देखिए, है ना, ये इमेज को रीड कर रहा है और फिर शो भी कर रहा है। कहाँ से रीड किया, आई इक्वल टू आई एम रीड, जो भी मेरा पिक्चर था लोगो, है ना, ये बीसी का लोगो है, इसको मैंने लोगो डॉट पीएनजी में सेव किया था और इसको रीड कर लिया मैं आई एम रीड से। तो आई एम रीड से आई एम READ एक ऐसा फंक्शन है, चूंकि आप जहाँ पे प्रोग्राम सेव किए हैं वहीं पे आप अपना फिगर को